all are done. Yes. Shivang, what should be the verb for This galti is karna? done. Sir, should I ask गलती question? करना is done, Didi. It is given. Okay. It is given. It is all Okay, given, you man. ask. Later. Sir, blackboard Where is is not given, sir? clearly visible. बेटा निशा, यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है कहीं। तुम्हें बोलना चाहिए व्हाइट वाला ब्लैक बोर्ड। हाँ, I want to inform you today network is creating problem. All India network is creating problem. All India. If your CC is on, you can read. So if it is not visible clearly, disconnect and connect again. Shivang, did I give you any sentence in past simple? In past simple, you give only one sentence. मैंने सोचा. Okay. And one sentence is also given. उसने अटक अटक कर English बोली, but the English is rest of this sentence. No, sir has given us. Somebody wants to He make. was absent. He was absent He that was day. absent that day. Yes, sir. Uh, hello, Neeta ji. Say something. Hello, hi. Yes, sir. I suggest you to record your speech. You know why? Because your network is slow and sometimes you are visible, sometimes you are invisible, then visible, invisible, visible, invisible. So it will affect the recording. Yes, sir. So please record your speech today and Yes, send sir. on WhatsApp and record small parts. Okay, sir. Okay. Means 1 minute, then 2 minutes, then 1.5 minute, ऐसा जितना भी हो सके, because WhatsApp पे बहुत बड़ी फाइल को लेता नहीं है जल्दी से, Yes, sir. Okay, sir. तो Thank you, sir. मेक इट 2 parts, 3 parts और 4 parts. आज आपने देखा Okay. होगा ग्रुप में निशा ने 4 हिस्से में अपनी स्पीच भेजी है, Yes, sir. तो रिकॉर्ड इट एंड दोस्तों प्लीज राइट डाउन वन सेंटेंस. I will give you interactive sentence after this sentence. क्या आपने कुछ कहा? सर ये पास्ट सिंपल में लिखना है. प्लीज राइट इट डाउन इन पास्ट सिंपल टेंस. उसमें आपके पास 2 वाक्य हैं. एक है आई थॉट, मैंने सोचा. सेकंड, ही स्पोक ब्रोकन इंग्लिश, उसने अटक अटक के इंग्लिश बोली.
who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Please go ahead. आप एक गड़बड़ी करती है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, प्रोसेस से बनाना है सेंटेंस, प्लीज डू नॉट Yes, वॉमिट. sir. Yes. This sentence is related to past simple sentence or past indefinite. Uh, it is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is, then after I take a subject, and subject is you. Later on, I take a subject, a verb, a first form of verb, and that is say. Lastly, I take object, and the object is something. Later on, I put the question mark. थैंक यू नीता जी. Thank you, sir. Guys, there is something wrong. कुछ गड़बड़ है, but no problem. आपने देखा नीता जी ने ये बैच देर से ज्वाइन किया. नीता जी joined this batch late, but she is always ready to try. लेकिन वो कोशिश करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. This is very nice thing for this class. And again I want to say, sentence does not matter. Sentence making does not matter in this class. इस क्लास में वाक्य बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जैसे आपके स्कूल कॉलेज में होता था. Now, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Okay, नम्रता, तुमने अभी तक कोई भी वाक्य नहीं बनाया ना? Okay, go ahead. सर आज तो नहीं बनाया इसके पहले, लेकिन सर मैं सक्सेस कभी नहीं हुई. Sir, I tried and tried, and today I'm trying again. Go ahead. Keep trying. That's why I'm doing. This sentence is related to past simple indefinite tense, past indefinite tense, and it is an inverted sentence. Firstly, I will take the second form of. Firstly, I will take second form of the verb, and the second form of the verb is did. Later on, I will take the subject, and subject is you. Thereafter, I will take the noun, and the noun is ask. Thereafter, I will take the object, and object is a something. And lastly, I will put the question mark there. Very nice, नम्रता. बढ़िया. हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें कहीं कोई गलती है, लेकिन हम ये एक मौका और किसी और को भी देना चाहते हैं जिसने अभी तक एक भी कोशिश ना की. मिनी, तुमने कभी कोशिश की बेटा? Yes, sir. I have to make this sentence. This is this sentence is related to past simple tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take WH word, and the WH word is what.
Thereafter, I will take subject, and subject is you. Thereafter, I will take verb, first form of the verb, and first form of the verb is say. Sorry, ask. Thereafter, I will take I take object, and object is something. Lastly, I will put the question mark there. Very nice, Nidhi. मिनी मिनी इस बात से बिल्कुल भी अपसेट मत होना कि तुम्हारा सेंटेंस सही नहीं बना, गलत बना। तुमने इतनी सारी इंग्लिश बोली, ये महत्वपूर्ण है। रोशनी बेटा, एक आध बार तुमने सेंटेंस बनाया है, कोशिश की, तुमने कर ली। निशा ने No, sir. निशा कोशिश करो, हम तुमसे पूछते हैं, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I had to this make sentence. Uh, this Sorry. sentence is relative. This sentence is relative. Past simple. It is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is, sir, I don't know. म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। देखो निशा, फिर हम कहेंगे सेंटेंस तुमसे जितना बना तुमने बनाया, और तुमने 4-5 सेंटेंस तो इंग्लिश में बोले होंगे ना, 3 तो बोले होंगे, 4-5 नहीं, है ना? ये महत्वपूर्ण है। Who else is rest? जिसने एक भी बार कोशिश न की और कोशिश करना चाहे। नेहा actually left. Did she join again? No. Neha, are you there? Neha, are you there? No. Sir, I think Rupaldi is rest. Okay, you are right. Rupalji, who has to make this sentence? Sir, I have make this sentence. This sentence is related to past simple. Firstly, this sentence is related to past simple, and this sentence is WH word. WH. Firstly, I will take WH word, and WH word is what. Later on, I will take verb first form. Then I will take sir. Okay, no problem. It will do. Practice makes perfect. Namrata, please restart. I'm asking the question. Who has to make this sentence?
Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to past indefinite tense. It is an inverted sentence. बच्चों तुम्हें पता है जैसे ही आप बताओगे कि इट इज एन इन्वर्टेड सेंटेंस, मैं हमेशा 2 सवाल हिंदी में करूंगा, ये बताया था, याद है? तो मैं 2 सवाल हिंदी में कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू नम्रता। नम्रता, कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर, सब्जेक्ट के बाद वाले सेंटेंस को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देना है। नहीं सर, क्या लगा हुआ है ऐसे पहचानेंगे कि जब सब्जेक्ट के पहले क्या है, इसका मतलब है कि ये WH वर्ड है। थोड़ा सा तुम गलत बोल रही हो नम्रता, तो हम इस मामले में यहाँ पे किसी की मदद ले लेते हैं। Who Yes, sir. will give the correct answer of this question? Sir, can I try? Nidhi Okay, can. ladies first. Actually, Shivang was also ready. He unmuted himself, but Oh. ladies first. No, Okay. Nidhi. जब हिंदी वाक्यों में क्या पहले होता है तो ये इन्वर्टेड होते हैं सेंटेंसेस, है ना? वेरी गुड। अब ये हमने इसलिए पूछा कि अभी आप देख रहे थे, याद है हमने शुरू में बोला था एकदम हिंदी वाक्य में क्या देखते ही साथ व्हाट नहीं लग जाती है, वोट लगा के वाट लगा लेते हैं। व्हाट लग जाती है। मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का, टाइड है तो वाइट है। तो सबको एक एक मौका देने का यही उद्देश्य था। नम्रता, तुमने बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन उसी दौरान कोई आ गया था तो मैं चला गया यहाँ से। अच्छा, एक चीज तुम लोग को साफ साफ दिखती होगी, जैसे तुम लोग जब कोई काम होता है या कोई बात करता होता है तो तुम लोग शट डाउन कर देते हो शटर, लेकिन मैं इसको ऑन छोड़ के जाता हूँ। अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूँ तो हो सकता है कोई छोटा काम हो, कोई आया हो या कोई कुछ पूछ रहा हो, तो उस दौरान मैं चला गया था। तो सही उत्तर मिल गया। अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या है, मतलब वो इन्वर्टेड सेंटेंस ही है, उसकी पहचान है। अब हमने जो दूसरा प्रश्न पूछते जा रहे हैं उसका उत्तर तुमने पहले ही दे दिया था, लेकिन अब उसको अच्छे से देना। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। वो वाला नहीं जो राधा ने सिखाया था आपको, अपितु वो वाला जो झा सर ने सिखाया था, 3 उंगलियां। सर, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो ये इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। अब ये मैंने पुराना वाक्य लिख दिया, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है I thought. Shivang, what is I in this sentence? Sir, I is the subject in this sentence. Nidhi, which chapter is this sentence related? Sir, this sentence is related to be past. Sorry, past simple tense. Thank you. Neeta ji, what is the helping verb here? Sir, there is no helping verb in this sentence. Very good. अब हिंदी भी कर लेता हूँ। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सर, इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है। रोशनी, what is thought? Thought is adjective या noun? सॉरी रोज। Nisha, what is thought? Sir, thought is adjective. Very nice. Rupal ji, what is thought? Thought is a verb. Very nice. Namrata, what is thought? Sir, thought is the second form of the verb. Thank you. Thought is the second form of the verb. Formula is subject plus second form Verb के plus object plus extension.
और हाँ, मैं एक घोषणा और कर दूं। कल आप लोगों को बुरा लगा होगा क्योंकि कल की क्लास मैंने सस्पेंड कर दी थी, छोड़ दी थी, लेकिन उसके परिणाम भी आज आपने देखे। 3 लोगों की स्पीच रिकॉर्डिंग होके आ गई और चौथा कैंडिडेट स्पीच देने के लिए तैयार बैठा। ये आप पहले भी कर सकते थे बेटा, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। और हमने पहला सवाल कल यही किया था कि स्कूल में या कॉलेज में तुम्हारे मन में आता होगा कि टीचर स्ट्रिक्ट क्यों होता है, कठोर क्यों होता है, वो तुम बनाते हो उसको। तुमने मुझे मजबूर किया कठोरता बरतने पे, मैं कल कठोर हो गया, कल का तुम्हारा नुकसान हुआ। विशेषकर देखो बच्चों, उनका तो नुकसान हुआ जिन्होंने अपनी स्पीचेस दे दी थी, जो रेगुलर हैं, सिंसियर है, पंक्चुअल है, उनका ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसका नतीजा भी देख लिया। निशा की स्पीच भी अच्छी हो गई, रोशनी की भी रिकॉर्डेड स्पीच आ गई व्हाट्सएप में, मिनी की भी आ गई, तो ये फटाफट हो गया। और नीता जी स्पीच देने के लिए तैयार बैठी, मतलब सबकी स्पीच हो गई। तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। नम्रता अपना उसको दोहराना, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम फिर से दोहराना नम्रता। सर सब्जेक्ट के बाद वाले सेंटेंस को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सेंटेंस वर्ड सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। अब नम्रता, अगर अपन थॉट को आगे रखेंगे और किसी से पूछेंगे आई थॉट, यू थॉट, ऐसा उचित लगेगा क्या? नो सर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है अफर्मेटिव में, आप देख रहे हैं, तो हमें उधार लेना पड़ता है। उधार शब्द को गौर से सुनिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरो, BORROW, बोरो मीन्स उधार लेना। और उधार हम तब लेते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, और जब वो जरूरत पूरी हो जाती है तो हम वापस कर देते। महिलाएं अच्छे से इस बात को जानती होंगी, पड़ोसी होने के नाते कभी हम शक्कर उधार ले लेते, कभी पत्ती, कभी अदरक, कभी धनिया, कभी मिर्ची, फिर लौटा देते हैं, बाद में लौटा भी देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या उधार लेते हैं? व्हाट डू वी बोरो? कोई बताए? सर वी बोरोड डिड। यस सर, वी बोरोड इट। हेल्पिंग। हम यहाँ डिड नाम का शब्द उधार लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे शब्द को उठा के सामने नहीं रख सकते। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच में एक शब्द मौजूद है जिसको उठा के हम सामने रखेंगे, और वो है डिड, और ये सहायक क्रिया कहलाएगा। तो नम्रता फिर से स्टार्टिंग से बोलो, फर्स्टली से बोलो। Firstly, I will take the second form of the verb. नहीं बेटा, ये गलत हो गया था। Firstly, I will take the did. नहीं, ये भी सही नहीं। Okay. Firstly, I will take the verb. Inverted word. Second नहीं, form of the verb. नहीं, अब हमें वापस पारंपरिक अंग्रेजी का यहाँ हमें सहारा लेना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वर्टेड सेंटेंस। Okay. देखो Helping verb. सबसे- Okay, sir. Helping verb. Yes. Okay. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is a did. Later on, यहाँ से हम टोकना Sorry, शुरू sir. करते हैं। आ तुम्हारा बहुत लगता है, वो धीरे धीरे यहाँ से कम करके कम अगेन। firstly, I will take helping verb, and the helping verb is did. लिपस्टिक लगा दो नम्रता प्लीज।
and the helping verb, the अब एक सेकंड रुकना ना पड़ता, एक महत्वपूर्ण चीज समझाते हैं उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी से अपरिचित हैं, कम परिचित हैं। बच्चों यहाँ पे देखो, helping verb. याद है बैच की शुरुआत में हम बार बार बोलते थे, फिर कम होता गया, कि अंग्रेजी में एक ही शब्द एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है। याद आया? वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, प्रपोजिशन भी, कंजंक्शन भी, कई तरीके से काम करता है एक ही शब्द। तो यहाँ डिड नाम का शब्द सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब। गो अहेड नम्रता। Later on, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, I will take the noun, and the noun is ask. And lastly, I will put the object. Sir, ask something पूरा object में आ जाएगा। अभी अपन इस पे और चर्चा करते हैं बाकी लोगों से। Thereafter, I will take the object, and object is a ask something. Lastly, I will put. Finally, I will put the question mark. Okay. चलो, इस बार दोबारा नम्रता के मुंह से इतनी सारी इंग्लिश निकली। सेंटेंस सही है, गलत है, नो प्रॉब्लम। नाउ who is ready to make this sentence again? Sir, I have to ready to make this. Okay, Neeta ji, go ahead. So this sentence is related to past simple sentence. It is an inverted Past simple? sentence. Past simple or past indefinite क्या? sentence. हमें बार बार सेंटेंस सुनाई दे रहा है। अच्छा, okay sir. It is an inverted sentence. इसको फिर से बोलिए शुरू से। Okay sir. So this sentence is related to past simple or past indefinite. दो मत बोलिए, वो तो लिखवाने के लिए लिखवा दिया था। पास्ट सिंपल। Okay sir. Yes sir. This sentence is related to past simple. क्या? It is past simple tense. Past simple tense. Good. Yes sir. It is an inverted sentence. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the Yes. helping verb is did. Yes. Thereafter, I will take the subject, and subject is the you. गलत जगह डाला Thereafter, गया। फिर से बोलिए। sorry. कहाँ? Firstly, thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Yes. Later on, I will take the second form of verb, second form of main verb, and the Second form of the verb. sorry. Then thereafter, I will take the first form of verb, and this is ask. अरे हम आपसे एक चीज पूछना भूल गए नीता जी, आपने कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? क्योंकि सर इसमें हिंदी वाक्य का सेंटेंस क्या से शुरू होता है? इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम भी बताएं एक बार। यस सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंस। आपको शिवांग दिख रहा है? देखिए शिवांग क्या कर रहा है।
ये तो फॉर्मूला हो गया। वो संकेत दे रहा है। दोस्तों, बी चैप्टर का थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए और इस नई चीज को सीखना और स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना 27 साल से आप जो चलाते आ रहे हैं वो आपको आगे जाके कष्ट देगा 27 साल से। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको वैसा सिखाया गया था तो आप वैसा चलते चले जा रहे हैं। चलिए नीता जी, आपने यहाँ तक अच्छी कोशिश की, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. वेरी नाइस, गो अहेड। Sir, firstly, I will take the. नहीं, हम शुरू से पूछते हैं रोशनी, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. बेटा इससे एक चैप्टर का रिवीजन जैसा हम करवाते हैं, हैव टू चैप्टर जो हल्का सा दिया था ना, एक पूरा राउंड चलाया था, सबने एक एक सेंटेंस बनाए, इस बहाने उसका रिवीजन हो जाता है। Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to past simple tense. It is an inverted sentence. कैसे पहचाना First, रोशनी ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर इसमें हिंदी सेंटेंस में पहले क्या लगा है? वेरी गुड, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बता दो। सर इन्वर्टेड सेंटेंस का नियम, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। जैसे यू आर रेडी, तो अपन किसको उठा के सामने रख देंगे? आर यू रेडी? आर यू रेडी प्रश्न बन जाता है ना। तो ये बी चैप्टर है और इसमें दूसरा शब्द मुख्य क्रिया होता है। हमेशा सहायक क्रिया हर सेंटेंस में तो नहीं आती है ना। नहीं। तो यहाँ से हम अच्छी चीजें को समझ सकते हैं। बी चैप्टर देने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर बार सहायक क्रिया को उठा के सामने रखने से प्रश्न नहीं बनता है। बी प्रेजेंट में भी ऐसे ही होता है, बी पास्ट में भी आपने देखा। जैसे रोशनी, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, यू वर बिजी, इसको प्रश्न बनाओ। वर यू बिजी? बन गया प्रश्न, वेरी नाइस। क्या आप व्यस्त थे? हाँ, मैं व्यस्त थी। यस, ये बढ़िया, अब बन गया। लेकिन यहाँ पे वर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। चलो आगे बढ़ो रोशनी। I have to make this sentence. Firstly, I will take the helping verb. And the helping verb is did. Later on, I will take the subject, and the subject is you. Later on, I will take the first form of the verb. फर्स्ट फॉर्म क्यों ले रही है रोशनी? पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता ही है ना। अरे वाह यार, गुड। हमने अभी चर्चा नहीं की इस विषय पे। सर मैंने YouTube में देखी है, आपकी वो वीडियो देखी है। ओह, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। गुड। तो डिड लगाते ही सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में क्यों बदल जाता है, ये भी बता दो। सर ये नहीं पता ये नहीं देखा। कौन बताएगा? सर क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। सर सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सर दो सेकंड फॉर्म तो नहीं रह सकते। अच्छा बताओ, डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू डू, डिड, डू।
वेरी गुड। तो हमने सेकंड फॉर्म ले लिया, तो ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। वेरी गुड रोशनी, बताओ। And the first form of the verb ask. Uh, Later on, I will take the conjunction. Conjunction is anything, something. Yes. गुड। Lastly, हाँ, I put the question mark. गुड, वेरी नाइस रोशनी, म्यूट योरसेल्फ। आप सभी लोगों को रोशनी से ये शिक्षा लेनी चाहिए, जिसने पहले दिन से रोशनी को देखा है। निधि ने तो देखा ही है, बाकी का हमें नहीं मालूम किसका कितना लेट एडमिशन हुआ। और नम्रता ने भी देखा है कि रोशनी से पहले दिन अपना नाम बताते भी नहीं बन रहा था, याद करें। अपना इंट्रो भी नहीं दे पा रही थी, 3 लाइन में भी 2 लाइन में, याद कीजिए। अब ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में हैं, तो कोई भी देख सकता है फर्स्ट डे का वीडियो, लेकिन चूंकि रोशनी रेगुलर है तो उसके परिणाम अच्छे होते जा रहे हैं। गुड। रोशनी, कुछ गड़बड़ी हुई है, चलो देखते हैं इस वाक्य को कौन सही बनाता है। और हु इज रेडी, हु इज इंटरेस्टेड टू मेक दिस सेंटेंस? अभी मैं निधि और शिवांग को कॉल नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग निधि एंड शिवांग। Sir, I have to make this sentence. Nita ji, you got 2 chances, right? Okay. So I want to give second chance to Nisha or Neha. Neha is totally disconnected. Neha, are you there? No. So she called me. My mobile is hanging. That's why it is मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. She is saying to me. ओके, तो चलिए हम शिवांग को इनवाइट करते। शिवांग, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to be past simple, and it is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Later on, I will take the first form of the verb, and I will change the second form of the verb into first form of the verb. And the first form of the verb is ask. And lastly, I will take the object, and the object is something. And finally, Yes. I will put full stop. रोशनी, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल कर थोड़ा सा तय करते हैं। हिंदी वाक्य में यहाँ पे लिखा है कुछ, तो कुछ के लिए 2 अंग्रेजी शब्द हैं बच्चों। कौन कौन से? Anything or something. एनीथिंग और समथिंग। तो बताओ निशा, तुम बताओ समथिंग लेके एनीथिंग कौन सा अच्छा लग रहा है? Sir, I think something. वेरी नाइस। नीता जी, आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? Sir, something. रूपल जी, आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? Anything. रोशनी? Sir, anything. नम्रता? Something. समथिंग। निधि? So something. मिनी, आर यू देयर? Yes, sir. कौन सा अच्छा लग रहा है? Sir, something. हाँ, अब दोस्तों, अच्छा लगने से तो नहीं होता है। मुझे तो मर्सिडीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उतना बजट भी तो होना चाहिए, है ना? ताजमहल भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्रामर को याद करना होगा। और चलिए हम एक नई चीज सीखते हैं जो निधि भूल गई है और शिवांग को शायद नहीं मिला है।
दोस्तों सुनिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में समथिंग, समबडी, समवेयर, समवन जैसे शब्द अफर्मेटिव में आते हैं। और ये इन्वर्टेड सेंटेंस है, इसमें एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीवेयर जैसे शब्द आते हैं जिसमें एनी लगा हो इन्वर्टेड में। और नेगेटिव में भी आगे चल के अपन यही चीज देखेंगे। तो ये इन्वर्टेड सेंटेंस से बताओ बच्चों, अपने को क्या लेना चाहिए? Sir, anything. Anything. And finally, I will put the question mark. ये व्याकरण की दृष्टि से है, ये आपको अपने बच्चों को सिखाने के काम में आएगा और शिवांग को अगली क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आएंगे। बहुत छोटी सी बारीक सी चीज है, लेकिन एक बार, और इतना खाली सिखाने से नहीं होगा। अभी हम एक राउंड खेलेंगे, उसमें देखना देखते लोग गलती करेंगे तो अपन उसको रियलाइज करेंगे, ठीक है, और सही भी करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, डिड यू आस्क एनीथिंग। और मैं पूछना भी शुरू कर देता हूं, आपको यस में आंसर देना है। बस याद रखिएगा, आपने पड़ोसी से जो चीज उधार मांगी थी वो आपको लौटा देनी होगी, क्योंकि आप उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करने वाले को डेढ़ उधार लेना पड़ रहा है, उत्तर देने वाले को जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं निधि से ही पूछ लेता हूँ। निधि, डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, sir. I ask you something. तुमने एक्स्ट्रा शब्द लगाए तो हम तुम्हें कैंसिल करके शिवांग से Yes, sir. I ask something. शिवांग, डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, sir, I asked you something. अरे ये भी लगा रहा है। Asked something. अच्छा, ओके ओके। No, sir, asked something. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। गूगल गलत ले रहा है, नो प्रॉब्लम। निधि, ओके। क्या आपने कुछ पूछा? हाँ सर, मैंने कुछ पूछा। आस्क टू निधि दीदी। निधि दीदी, did you ask anything? Yes, I ask something. नहीं ले Sorry, रहा come again. गूगल। Yes, I ask her something. एक मिनट निधि। नम्रता, डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, sir. I asked something. क्या आपने कुछ पूछा? हाँ सर, मैंने कुछ पूछा। रोशनी। रोशनी, did you ask something? सॉरी। Did you ask anything? यस, रियलाइज करो अब। Yes, रोशनी। I ask anything. Yes, Sorry. I ask Sorry. anything. Sorry. रुक जाओ रोशनी, कोई बात नहीं। नीता जी से पूछ लो नम्रता। नीता जी, did you ask something? Did you ask anything? Yes, Namrata ji, I asked something. नीता जी, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने कुछ पूछा। मिनी से पूछ। मिनी, did you Yes, ask the anything? Did you yes, ask the anything? yes, the I ask something. मिनी, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ दी, मैंने कुछ पूछा। रूपल दी, did you ask anything? Yes, I asked something. दी, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने पूछा। Who broke?
I'm Oh, dressed yes, for answering. Nidhi. Did you ask anything? Yes, I asked something. क्या आपने कुछ पूछा? Sorry, Didi. Something. And Yeah, my answer is yes. I asked something. Correct. Okay, complete the process. क्या आपने कुछ पूछा? रो- हाँ रूपल जी, मैंने कुछ पूछा. Who is rest? I am I rest. am best. Okay. Rosni, you ask anything? Yes, I asked something. रोशनी, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने कुछ पूछा. निशा जी, did you ask anything? Yes, I asked some. निशा जी, आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने कुछ पूछा. सॉरी रोशनी, क्वेश्चन. सॉरी दीदी. क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने कुछ पूछा. Everybody is done. I am rest. I'm rest दीदी. He is rest. सारे Shivam, rest. Shivam, did you ask anything? हाँ, I asked something. शिवांग, क्या आपने कुछ पूछा? Yes, मैंने कुछ पूछा. Ask me. Sir, did you ask anything? Yes, definitely I asked something. सर, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कुछ पूछा या पूछा था. चलिए दोस्तों, दूसरा राउंड शुरू करते हैं जिसमें वर्ब चेंज करते हैं, अपन क्रिया बदलेंगे. सब लोग अलग अलग क्रिया लेंगे, लेकिन आप आंख मूंद के क्रिया रख नहीं पाएंगे दोस्तों. आपको ऐसी कोई क्रिया रखना पड़ेगा जिसके साथ एनीथिंग फिट होगा. हर क्रिया के साथ एनीथिंग फिट नहीं होगा, तो सोच समझ के क्रिया रखिएगा. आई एम स्टार्टिंग विथ नम्रता. नम्रता, डिड यू राइट एनीथिंग? नम्रता, यू आर म्यूट. Yes, sir. I wrote something. थैंक यू. नम्रता, क्या आपने कुछ लिखा? हाँ सर, मैंने कुछ लिखा. निधि, did you cooked anything? सॉरी. सॉरी मेरी दो. Did you cook anything? Yeah, yes. I cooked something. निधि, क्या आपने कुछ बनाया या पकाया? हाँ, मैंने कुछ पकाया. शिवांग, did you make anything? Yes, दीदी, I made something. शिवांग, क्या आपने कुछ बनाया? हाँ, मैंने कुछ बनाया है. रोशन दीदी, did you take anything? Yes. रोशन दीदी, Come again, Shivam. did you take anything? Yes, I took something. दीदी, क्या आपने कुछ लिया? Liya. Nisha ji, did you play anything? Yes,
I played something. Sorry. S या yes? Yes, yes, I played something. निशा जी आपने कुछ खेला? नहीं, आपने Sorry. Please आप ask question. निशा जी क्या आपने कुछ खेला? हाँ, मैंने कुछ खेला. रूपल दी, did you do anything? Yes, Didi, I I spoken out of my mouth. I am just thinking this verb. रूपल दी, क्या आपने कुछ किया? please come again your question. Did you do anything? Yes, I do something. Sorry. I did some. Yeah, yeah. You are saying right. Ask I this did. question to Shivang. Shivang, did you do anything? Yes, I did something. क्या आपने कुछ किया? हाँ मैंने कुछ किया. Mini Didi, did you no? Did you smoke? No, did you teach something? Anything? Did you teach anything? Yes, I uh, yes, I teach anything. Sorry. Yeah, yes, I taught anything. Sorry. 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 दोस्तों इस समस्या से आपको निजात दिलाएगी आपकी तीसरी स्पीच. जब आप पास्ट सिंपल में पूरा रूटीन बोलेंगे तो 30 से 40 क्रियाएं प्रयोग होंगी, तो सबके सेकंड फॉर्म आपकी जुबान पे आ जाएगी. सर सर taught ही बी पास्ट का teach यूज taught. कर सकते हैं क्या इसमें? थर्ड स्पीच में समटाइम्स हाँ कम से ऑटोमेटिकली सर. बेटा, बी पास्ट, कुड, पास्ट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं तो उसका प्रयोग थर्ड स्पीच में कर सकती हो. आएगा ही, वो ऑटोमेटिकली आएगा तो रख सकती हो. कुड भी पास्ट ही है, वो भी रख सकती हो. और हैव टू का पास्ट हैड टू है, वो भी रख सकती हो. दीदी ऑटोमेटिकली बैठ के आएगी आपके पास ऑटोमेटिकली. Sir, I am ready for questioning. यहाँ कहीं अटकी हुई है ना गाड़ी? Yes, sir. Yes, Mini was saying something, ना? हाँ मिनी दीदी is saying I am something. ओके, हम मिनी अगला दीदी राउंड शुरू is कर also देते. नो प्रॉब्लम. दिस इज डबल क्वेश्चन राउंड बच्चों. डोंट वरी, लिसन केयरफुली. आई एम यूजिंग सेम वर्ब. Namrata, did you write anything? yes, sir. I wrote something. What did you write? Sir, I write poem. Sir, I wrote poem. Poem. Sorry, poem लिखोगी. Rhyme. Sir, I wrote letter. Letter. छी. I wrote letter. For 3 days दीदी leave आप है ना? 1 रुपए. I wrote No, दीदी article. दीदी आप 1 रुपए. Yes. 1 रुपए ऐसे पेटीएम कर देना, ठीक है?
Yes, sir. दोस्तों, आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके कॉमन सेंस से, अपने राइट ब्रेन से देना होगा। इसमें आप समझ गए होंगे, वो मन से देना होगा आपको। Okay. और वर्ब आप नई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो याद करके रखा था कि मैंने नम्रता से राइट पूछा था, इसलिए मैंने राइट ही यूज कर ली। नम्रता, आप कोई नई वर्ब यूज कर सकते Sivang, uh, did you guess? Sir, you are saying something. नहीं, हम ये बोलने जा रहे थे बेटा कि सीक्वेंस सेम रखते। तुमने Okay, sir. किससे कुछ कुक Nidhi. करवाया था ना, किसी से कुछ कुक करवाया था, तो उससे पूछ Yes, लो sir. उसने क्या। मैं उसी के पास जा रही हूँ. निधि, did you guess anything? Yeah, yeah, I guessed something. What did you guess? बेटा पहले हिंदी कर लो, नई वर्ब है। निधि, आपने क्या आपने कुछ रोशनी, अनुमान किया? रोशनी, तुम्हें बहन की प्राप्ति हो रही थी। Like it was. क्या आपने कुछ अनुमान लगाया या किया? हाँ, मैंने कुछ अनुमान लगाया। Okay, what did you guess? I guessed about you. आपने क्या अनुमान लगाया? About me. निधि, तुम्हारा उत्तर बहुत सटीक नहीं है, Yeah, sir, it is not working ना। तो हम इसका उत्तर दे देते हैं, फिर नम्रता फिर से वर्ब बदलेगी, या Okay. हम तुमसे पूछ लेंगे कोई दूसरी। नम्रता, Okay. ask me 2 questions. Sir, did you guess something? Did you guess anything? Yes, I guessed something. सर, क्या आपने कुछ अनुमान लगाया? हाँ, मैंने अनुमान लगाया। Sir, what did you guess? I guessed that the cold will increase tomorrow. सर, आपने क्या अनुमान लगाया? मैंने अनुमान लगाया है कि कल ठंड बढ़ेगी। Okay, Nidhi, did you notice anything? Sir, you have spoken out Yes. of my mouth. It was my upcoming birth. Yes, sir. I noticed something. निधि, क्या आपने कुछ नोटिस किया? हाँ सर, मैंने कुछ नोटिस किया। What did you notice? Sir, I noticed her mistakes. आपने क्या नोटिस किया? सर, मैंने उसकी गलतियां नोटिस की। गुड। शिवांक, शिवांक, did you hear anything? Yeah, Didi, I heard something. शिवांक, क्या आपने कुछ सुना? हाँ दीदी, मैंने कुछ सुना। शिवांक, what did you hear? Didi, I heard that there's someone. शिवांग, आपने क्या सुना? मैंने सुना जैसे कहाँ वहाँ कोई हो। गीता जी, did you use anything? Yes, Shivang, गीता जी, I use.
Yes, Sivang, I used something. दीदी क्या आपने कुछ यूज किया? हाँ शिवांग, मैंने कुछ सॉरी यूज सॉरी किया। मैंने Yeah. कुछ उपयोग किया। What? Shivang, come again your question. As far as Yes, I think your Shivang. question was wrong. I Yes, your was, question was wrong. I also noticed. I wanted to say something, but Neeta ji answered. That's why I keep quiet. Did you निधि वाना के साथ टू नहीं anything? लगता, वाना में टू मौजूद होता है। निधि वाना अपने आप में पूरा है। I थैंक यू। wanna say something. Neeta ji, did you use anything? Yes, Shivang, I used something. नीता जी क्या आपने कुछ यूज किया? उपयोग किया। I think you should use हिंदी। हाँ क्या शिवांग, क्या आपने मैंने कुछ उपयोग किया? हाँ शिवांग, मैंने कुछ उपयोग किया। दीदी what did you use? शिवांग, I used my husband towel. इसका हिंदी Husband's towel. हाँ, so there you are. Apostrophe S on the screen you can see. Yes sir. दीदी आपने क्या यूज किया? मैंने अपने हस्बैंड की टॉवेल यूज की। मिनी, डिड यू रीड एनीथिंग? Yes, I read something. Sorry. Come again. Come again please. Sorry. I read something. Sorry. Sorry. सही बोल रही है वो, Okay, okay. क्योंकि What? रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक सी होती है बेटा। Okay. Yeah, I heard actually wrote. मिनी, क्या आपने कुछ पढ़ा? हाँ दी, मैंने कुछ पढ़ा। मिनी, what do you read? Come again, दी। Sorry दीदी, come again. What did you read? I read poem. हाँ, वो गड़बड़ ही चल रहा है यहाँ, उच्चारण Sir, मानते actually, I yes, read sir. Actually, poem. this verb is done first. That's why, and it is not working. Na? No, One I time. asked right. She's Oh, right. using, she's using Hmm. read. Oh, but it is. No, निधि दिस इज गुड। एक्चुअली ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। रीड की तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग सेम टू सेम है, और वो अपनी खिड़की भी बंद रखे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। अब हम ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे भी कठोर होना पड़ेगा। जैसे अब नीता जी का तो समझ में आता है कि उनका नेटवर्क ही गड़बड़ है, तो वो कभी दिखती सर हैं कभी। सर आज रूम में लाइट नहीं है तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब ऑफ कर रही हूँ अपना वीडियो बार बार। तुम एक तो अपोजिट लाइट बैठी हो बेटा, तुम लोग सेल्फी लेने वाले लोगों को अपोजिट लाइट में कैसी गंदी सेल्फी आती, तुम्हें उस तरफ मुंह कर, वो बल्ब पीछे दिख रहा है तुम्हारे, यस सर। तो उस तरफ मुंह करके सर बैठो। बट सर बट वहाँ ये प्रॉब्लम है कि फोन रखते नहीं मैंने कहा तो फिर फोन हिलेगा बार बार, इसलिए। Okay, Mini, what did you read? आई रेड पोयम। Okay. निधि, आपने क्या पढ़ा? दी मैंने पोयम पढ़ी। मिनी पोएम को कोई पढ़ता है?
दीदी आलू पराठा होगा ना? नहीं यार भैया, वो तो गाता है पोएम। अच्छा पोएम गाता है ना, वही हम सोचे। I read story. Good morning, Mini. Ask something. Ask anything. Anyone else? Yes, दी. रोशनी दी. Did रोशनी दी. गुड अब मॉर्निंग बोल भी मम्मी। तो रोशनी जी दिख तो रही है साफ साफ, उनके इधर तो लाइट। Roshni di, did you win anything? Sir, your voice is chopping. I think there is some network issue. Beta, network issue has been going on since the morning all over India. Good morning, Roshni. Yes, I won someone. Something. Sorry. Someone. Yes, Come I Come again. won something. दी, क्या आपने कुछ जीता? Roshni, sorry for pronunciation. Wonni, One. one. हाँ, one. One. I won something. दी, क्या आपने कुछ जीता? हाँ, मैंने कुछ जीता। दी, what did you win? I win gold medal. Sorry. I won. I won gold medal. दी, आपने क्या जीता? मैंने गोल्ड मेडल जीता। निशा जी, did you play anything? Yes, I play something. Sorry. I did played something. Played. Sorry. बच्चों कोई दीदी बात आपकी नहीं। दो पीरियड। नहीं नहीं बेटा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो उधार लेते हैं उनको उधार वापस लौटाने की आदत नहीं होती है, तो ऐसा निशा दीदी के साथ भी हो सकता है। Okay, Namrata, you can leave. Your network is creating problem. निशा जी, Good morning. did you play anything? Yes, I did played something. Sorry. Sorry दीदी। ओके दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है, तो निधि तुम आंसर दे दो इसका। Yes, I played something. दीदी आपने कुछ खेला? सॉरी। क्या आपने कुछ खेला? So there you are. हाँ, मैंने कुछ खेला। What did you play? I played question round. दीदी आपने क्या खेला? मैंने क्वेश्चनिंग राउंड खेला रोशनी।
अब हम इसको, अच्छा निधि, यू आर रेडी टू क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. Okay, sir. Sir, did you आ ही नहीं रहा है. कोई बात नहीं, जब तक हम एक बात बोल देते Sir, हैं. did you comprehend anything? Yes, Did you I comprehend anything? comprehended something. Sir, what did you comprehend? रोंठाई नहीं The हिंदी. process. पश्चिम रोंठाई नहीं, Sir, what did you रोंठाई कर comprehend? Complete the process. Did you complete the process? Oh, सर आपने क्या आपने कुछ आत्मसात किया? हाँ, मैंने कुछ आत्मसात किया. What did you comprehend? I comprehended one paragraph of Buddha. सर आपने क्या comprehend किया? मैंने बुद्ध का एक पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंड किया. रोशनी, तुम्हारे ऑब्जेक्ट अच्छे लगने लगे हैं, शिवांग भी अच्छे ऑब्जेक्ट लगाता है, लेकिन अपनी स्टार्टिंग याद करो. तुम लोग भी जैसे मिनी ने फट से पोयम पढ़ दी, वहां कोई लेटर लिखने लगा, पोयम लिखने लगा. ये 27 साल की आदत है, एकदम से नहीं जाएगी. ये लोग ये सब करेंगे कुछ दिन तक. अच्छे ऑब्जेक्ट इनको धीरे धीरे बनेंगे. रोशनी ने अच्छा ऑब्जेक्ट रखा था, रोशनी भी अच्छे ऑब्जेक्ट रखने लगी. रोशनी, तुमने क्या ऑब्जेक्ट रखा था? व्हाट डिड यू पुट? सब प्ले. नहीं, ऑब्जेक्ट क्या लगाया था बेटा आंसर में, सेकंड आंसर? ऑब्जेक्ट गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल बड़ा अच्छा ऑब्जेक्ट था भाई. क्या आपने कुछ जीता? हाँ, मैंने कुछ जीता. आपने क्या जीता? मैंने गोल्ड मेडल जीता. तो रोशनी, तुम्हें याद है शुरू में तुमने एक आध बार बोला था, सर मेरे से ऑब्जेक्ट ढंग से लगाते नहीं बनता, समझ में नहीं आता. अच्छे से सुनो बस, और कुछ नहीं करना है इस क्लास में. कोई बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है. अच्छे से सुनो और फट से, अगर ना समझ में आए किसी का, खट से कम अगेन बोल दो. कम अगेन बोलो, फट से अनम्यूट करो, कम अगेन बोल दो. और कोई बड़ा है लग रहा है तो प्लीज के साथ कम अगेन बोलो, कम अगेन प्लीज. और प्लीज आखिरी में लगाने की आदत डेवलप करो, कम अगेन प्लीज. तो बनने लगेगा. अब बच्चों एक काम करना, कम से कम एक नया सेट बना के व्हाट्सएप करना हिंदी से, तो उससे निशा को क्लियर हो जाएगा. तुम क्वेश्चन करोगे, आंसर कोई भी दे, तुम 2 क्वेश्चन डाल देना नई वर्ब से व्हाट्सएप में, जब भी टाइम मिले, आज से लेके कल तक, कभी भी. तो निशा उसको पढ़ लेगी और अच्छे से एक आधा आंसर उसी में दे देगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. या हर आंसर को चाहे तो निशा दे दे, है ना? ओके, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. Nidhi, ask me please question. दीदी वो निशा जी का ना वो क्लियर कर दीजिए, आपकी डिड के उसको मतलब समझा दीजिए. नहीं मुझे आता, बस थोड़ी सी कंफ्यूज हुई. निधि, क्वेश्चन प्लीज. आप क्वेश्चन करें, मैं आंसर भी दूंगा. निधि इज नॉट. निधि वॉइस इज चॉपिंग. नॉर्मली कॉल करूं मैं आप तुमको? Did you play anything? Yes, I will play something. I will. Sorry, you could not. Sorry, I played something. Am I right? See? यहाँ सिक्सटी फॉर्म आ गया आंसर में, बिकॉज अभी पास्ट गोइंग ऑन, पास्ट सिंपल इज गोइंग ऑन.
दैट्स व्हाई इधर बी पास्ट ही आएगा, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगी आंसर में आपके ना। ओके ओके। कम अगेन योर आंसर। I played. Did you keep patience? Did you play anything? Yes, I did. Played something. Did नहीं आएगा ना। Yes, I played something. निधि तो मैं ऐसा ही तो बोल रही थी ना। But I played something. I did play something. निधि your voice is ऐसा बोल रही थी। निधि voice you're chopping. normally कॉल करूं? कॉल करूं नॉर्मली? ठीक है।